Hello. वालेकुम सर। The Stokes theorem we have to start after completion of Gray's theorem. See the statement integral over C. If in exam it may ask you the statement, so you have to write this part only. Integral over C f dot dr is equal to double integration over S curl f dot n cap ds. Integral over C f dot dr is equal to double integration over S curl f dot n cap ds. Okay, this is the statement of Stokes theorem. So let us verify the same in our one question. Verify Stokes theorem for f is equal to, here we have f of x square minus y square I cap plus 2xy j cap over the box. It is given in our question to box. We have to verify. Bounded by the planes, the box will be covered with these planes. X is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to b. So now first we see how this box will be looks like. First of all, we have to go for the coordinate axis, or directly we take that box. I will take the box. This is the box. Y axis, x axis. So x is equal to 0, y is equal to 0 is over. Now this is our box. We'll give the names for this box. This is y-axis, x-axis. This point is, we know that it is 0, comma 0. Equation of x-axis, y is equal to 0. Equation of y-axis, x is equal to 0. So any line parallel to x-axis is called x is equal to a. That's what this point is, a comma 0. And this is y is equal to b. So when x a and y, this point is a comma b. Here y0 means it's a 0 comma x0, y value is b. This is our box. We have to verify our Stokes theorem in this box. So this box consisting of 4 C1, C2, C3, C4 means whenever you're going to find a left hand side, okay, so that will be consisting of C1, C2, C3, C4. We have to find out C1 value, C2 value, C3 value, C4 value. Like we have already did in Gray's theorem, same story. Okay, left hand side will be equal to integral over C f dot dr value. It is a combination of this 4, that is along C1 plus along C2 plus along C3 plus along C4. You should find out C1, C2, C3, 4 individually and add here. You will get LHS value, then RHS value we have to discuss. अच्छा, ये पूरों में C1, C2, C3, C4 में क्या कॉमन है? F dot dr कॉमन है. सब में F dot dr करना ही पड़ेगा. तो आप कोई काम करेंगे. Let me find out F dot dr here first of all. सबके लिए जरूरत है, एक बार कर लेंगे. F is equal to, F is there in our question already. Every time F will be there. X square minus y square y cap plus 2xy j cap. This is our F value. This one we have to do the dot product with R. R dr means xi plus yj plus zk is R value. तो d से मल्टीप्लाई करेंगे dxi प्लस dyj. ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद कर लेना है. dz की, R की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू.
Now we know that I dot I is 1. So left off is here x square minus y square only. Now j dot j is 1 means we get 2xy dy. This is our equation number 1. यहाँ पर k टर्म नहीं है तो इधर भी k टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होता. Equation number 1. So what to do here is f dot dr तो हो गया. तो एक काम करेंगे C1 C2 C3 के सबका नेचर अलग अलग है. C1 C2 C3 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यू विल गेट योर आंसर. So let us do it. Now look at here. Along C1, I think I should go for the next page. It's not comfortable here. Along C1. Along C1. अब एक बार C1 देखिए कैसा है. What is C1? This is our C1 value. Y0. Y0 मतलब dy भी 0. X के लिमिट्स 0 से लेके a तक. Write it here like this. Y0, which implies that dy is also 0 and x varies from limits of x I am writing. X is equal to 0 to x is equal to a. Now along C2 का नेचर देखनी है. Look at the figure. C2 x is equal to a मतलब dx की वैल्यू 0, y की लिमिट 0 से b. X is equal to a and if you differentiate we get dx value is equal to 0 and y varies from y के पैरेलल में है. Y varies from y is equal to is that 0 to b. Now along C3. Along C3. Now look at where is C3? Here. Y is equal to b मतलब dy 0 और पैरेलल टू x एक्सिस x के लिमिट्स a to 0. Y is equals to b. This implies that dy is equal to 0 and x varies from x is equal to a to 0. Along C3. Along C3 is over now. Along C4. C4. Now look at the C4. कैसे C4 दिख रहा है? x0 dx0 y के लिमिट्स b to 0. x0 डिफरेंशिएट करने के बाद dx is also 0 and y limits are y is equal to b to 0. अभी पूरे वैल्यूज को ले जाकर एलएचएस में सब्स्टिट्यूट कर दें. लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू फर्स्ट सी वन पे इसका नेचर क्या है? अच्छा ये काम करेंगे एक और काम. इसमें इसकी हेडिंग यहाँ पर लिख देता हूँ. इसमें किसमें आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो लिख दो. इसमें सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy dy यहाँ पर लिख देते. इसमें सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
dx प्लस 2xy dy, 2xy dy, ये है आपकी वैल्यू किसकी, एफ डॉट डी आर की वैल्यू, एफ डॉट डी आर। इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाना सब चीज, पहले अपन रखेंगे इसके अंदर, ये इक्वेशन नंबर वन में नाउ वी हैव टू पुट y0 dy0, dy0 means second part 0, y0 means only left of 10 is x square dx, और लिमिट्स इसके होते x इज इक्वल टू 0 टू a। एक वेरिफिकेशन क्या है, x के वहां पर लिमिट्स बच रहे तो फंक्शन भी x में ही बचना चाहिए, या नहीं तो कांस्टेंट प्लस। ना y के लिमिट्स देखो c2 में, y is equal to 0 to b, now substituting this condition, dx 0 मतलब फर्स्ट पार्ट 0, x की प्लेस पे a रखे तो 2ay dy प्लस, नेक्स्ट थर्ड वन, x is equal to a to 0, नाउ y की प्लेस पे b dy0 सेकंड पार्ट 0, y की प्लेस पे b रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dx प्लस, लास्ट टर्म में dx0 और x0 बोल तो सेकंड पार्ट 0, dx0 बोल तो फर्स्ट पार्ट 0, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, y is equal to b to 0 में we don't get anything, 0 only. Finally integrate, we will get left hand side, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू a प्लस 2a is a constant, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 टू b प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे, माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी स्क्वायर एक्स, लिमिट्स a to 0, लास्ट टर्म तो वहां पर है भी नहीं, दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट तो 0 से छोड़ दो, 2 से 2 कैंसिल, प्लस a इंटू अपर लिमिट इज बी स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है, फॉरगेट अबाउट इट, प्लस यहाँ पर अपर लिमिट में पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की प्लेस पे अगर आप ए रखें तो a क्यूब बाई 3 minus b square into a. So simply multiply with minus sign these two terms. We get our left hand side value. एक काम करेंगे, थोड़ा मार्जिन कर लेंगे यहाँ पर, look at left hand side, actually we are doing integral over c f dot dr की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, which is equals to a cube by 3 plus ab square, एंड ये तो पूरा 0 गया, माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस a क्यूब बाई 3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ab square, again these two are cancelled, we are getting our answer is ab square and ab square is 2ab square, LHS का आंसर आया 2ab square, LHS का आंसर। Now we have to show right hand side answer भी also same thing, पहले तो अपन लिखेंगे what is right hand side, ये है right hand side, डबल इंटीग्रेशन और s कर्ल f डॉट n कैप ds, n कैप ds, तो पहले कर्ल f फाइंड आउट कर लेना, कर्ल f पहले फाइंड आउट कर देना, n कैप तो क्वेश्चन में नहीं है, तो n कैप की वैल्यू प्लस k कैप लेना और लिमिट्स लिखना, सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आता, तो पहले कर्ल f करेंगे अपन, कर्ल f CURL, कर्ल f, स्टार्टिंग के क्लासेस में अगर आपको याद है तो कर्ल कैसा फाइंड आउट करते हैं मैं बताया था आपको, del cross f, कर्ल f is equal to del cross f, and that will be finding like this, box product of I, J, K
and del k coefficients dou by dou x, dou by dou y, and this is dou by dou z. F coefficients are I k coefficients x square minus y square. We don't have any j coefficient is to xy. We don't have any k coefficient, so 0. Mod close. Now find out this value. Plus minus plus is the rule. Okay, the rule will be this one. Plus minus plus. First value positive, second value negative, third value again positive. I cap into this column and don't neglect. This one into 0, we get 0 minus. With respect to z करे तो यहाँ z नहीं है, फिर 0 आ माइनस j कैप इंटू j का करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट करके दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे 0 आ जाएगा, इसको विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे फिर से 0 आ जाएगा, प्लस k कैप इंटू कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब 2y माइनस दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू y, ये 2y माइनस इंटू माइनस प्लस दिस इज 2y, so totally becomes it is 4y k cap. ये कर्ल की वैल्यू है CURL कर्ल. ये एरोस को नहीं है जरूरत अपने को, तो मैं ये एरोस को इरेज कर दे रहा हूँ. तो कर्ल की वैल्यू आ गई. अब एन कैप ले लेंगे अपन. यहाँ पर देखो मैं थोड़े अलग कलर से बता रहा हूँ. एन कैप में आपको प्लस के कैप इसलिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं भी अपने पास सरफेस नहीं है, तो एन कैप की वैल्यू के कैप ले रहा हूँ. एन कैप की वैल्यू के कैप. अब फाइनली क्या करेंगे, डीएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डीएस की वैल्यू के लिए अपने पास मैं आपको सरफेस इंटीग्रल का एक पेपर आपको सेंड करा था, तो कैसे फाइंड आउट करते डीएस की वैल्यू बताने के लिए. तो डीएस कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस. डीएस के लिए वहां पर आप देखेंगे सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला, तो फर्स्ट पेज में वहां पर है वैल्यू के लिए फॉर्मूला. मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस dx dy by मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट के कैप. ये फॉर्मूला है डीएस फाइंड आउट करने. आपके पास सरफेस इंटीग्रल का पेपर है, पीडीएफ है, उसमें देखो उसमें रहता है. डीएक्स डी वाई तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय एन कैप की वैल्यू अभी पीछे लिखे अपन के कैप होती करके डॉट के कैप, एंड वी नो दैट के डॉट के इज 1. सो डीएस की वैल्यू क्या आ गई भाई, डीएक्स डी वाई आर. डीएक्स डी वाई आर. अब रहेगा लिमिट्स के बारे में बात करें. लिमिट्स ऑफ एक्स. तो सीधा सीधा फिगर को देखना अपन जाके, फिगर को देखनी यहाँ है, देखिए फिगर. एक्स के लिमिट 0 टू है, वाई के लिए क्या करेंगे, वाई के पैरेलल में एक स्ट्रिप बनाएंगे. वाई की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट बी है. तो x is equal to 0 to x is equal to a, and mentioning that we have taken on x-axis. Now limits of y is equal to 0 to, actually क्वेश्चन में भी है ये. अब आप क्वेश्चन अच्छे से देखो तो यही मिलता ऑन स्टेप. Taking all these values and put it in our RHS, and be careful that we have to show our answer will be again 2ab square. 2ab square आंसर बताना है. तो नाउ RHS पूरे वैल्यूज आगे तो RHS कर सकते हैं. डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप ds is equals to
एक्स के, इसमें डबल इंटीग्रेशन में एक्स के लिमिट है 0 से लेके ए तक, वाई के लिमिट है 0 से लेके बी तक, और कर्ल एफ की वैल्यू 4y के कैप आ गई थी अपने को, 4y के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट एन कैप की वैल्यू अपन के कैप लिए, डीएस डी वाई की वैल्यू, डीएस की वैल्यू अपने को आ गई डीएक्स डी वाई। नाउ वी नो दैट अगेन के डॉट के इज 1। तो एक काम करना, 4 को आउटसाइड ले लेना, कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 0 टू a, विथ रेस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर देना, y इज इक्वल टू 0 टू b, यहाँ पर बचा खाली y, 4 तो बाहर चले गया, k डॉट के 1 हो गया, ये dy विथ रेस्पेक्ट टू y कर दे रहे अपन, और ये dx आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो जाता, तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर, और इसका बाई 2 इधर बाहर निकाल देंगे, x इज इक्वल टू 0 टू a, और ये हो गया कितना, y की लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू b dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/2 इज 2, अपर लिमिट b की प्लेस पे, y की प्लेस पे b रखे तो b स्क्वायर बाहर निकाल दो, 0 टू a 1 dx, this is equals to 2b square, 1 dx is x, लिमिट 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करे तो ये आंसर आता है 2ab स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे a b स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखिए आप एलएचएस का आंसर भी 2ab स्क्वायर आ गया, आरएचएस का आंसर भी 2ab स्क्वायर आ गया, means we say that therefore we say LHS is equal to RHS, LHS is equals to RHS, okay, hence Stokes theorem verified। एक बार पेज नंबर 1 से देखो, कहीं डाउट है तो बोलो, अब बोले तो मैं नेक्स्ट पेज में मूव होता हूँ, जब तक देखिए। वन क्लास इज नॉट इनफ फॉर स्टोक्स थ्योरम, अपने को एक और क्लास भी इसके ऊपर रखना पड़ेगा, दो क्लासेस में खत्म करेंगे स्टोक्स थ्योरम को। ये पेज नंबर 1 है, के बाद ये इसका पेज नंबर 2 है, एप्रोड डीआर वैल्यू फाइंड आउट करें, पेज नंबर 2 है, C1 C2 C3 C4 के वैल्यूज को अलग अलग फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट करें, तो एलएचएस का आंसर आ गया। आरएचएस के लिए ये आरएचएस है, दिस इज आवर आरएचएस, इसमें करलेफ अलग फाइंड आउट करें, और कभी भी क्वेश्चन में अगर सरफेस नहीं दिया तो इन कैप की वैल्यू के कैप लें, स्टोक्स थ्योरम। और डीएस की वैल्यू के लिए सरफेस इंटीग्रल की पीडीएफ देखिए, फर्स्ट फेज में एक्स वाई प्लेन में कैसा लेना है डीएस की वैल्यू, और लिमिट्स क्वेश्चन में थे तो फाइंड आउट करेंगे, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। स्टोक्स थ्योरम के बाद अपने को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे, तो देन दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड। तो एक और क्लास इसकी होना चाहिए स्टोक्स थ्योरम पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े रहते, अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करें तो वो आधा ही हो जाता, अधूरा हो जाता, तो और एक क्लास में इंशाल्लाह, कल की क्लास में बाकी का एक और थ्योरम अपन, मतलब और भी प्रॉब्लम स्टोक्स थ्योरम के ऊपर करके ये टॉपिक को खत्म करेंगे। स्टोक्स थ्योरम के बाद आपके पास रहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके लिए भी दो क्लासेस की जरूरत पड़ती, क्योंकि एक क्लास में 31 मिनट, 32 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन कंप्लीट होता, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते, तो उसके बेसिक पॉइंट्स जो मैं बता के करना पड़ेगा। स्टोक्स थ्योरम बहुत बड़ा है, और गॉस, सॉरी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी दो क्लासेस लगते हैं, तो मेरे मेरे हिसाब से तो ये और भी बहुत बड़ा है। तो प्रैक्टिस चल रही है आपकी, यस सर। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और कहीं भी डाउट है तो पूछ लो आप लोग पीडीएफ में,
थर्ड यूनिट आपका इंशाल्लाह 3 क्लासेस में हो जाएगा। 3 क्लासेस इज इनफ टू कंप्लीट द थर्ड यूनिट और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट रहता। फिर फर्स्ट यूनिट का भी थोड़ा बेसिक फिर से बताता हूँ, बता के आपको ये इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ वी कैन मैक्सिमम वी कैन फिनिश इट, जून सेकंड तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ओके। ऑलमोस्ट 3 क्लासेस आर required to complete the unit number 3. Just inform to your mother that to pay the remaining balance, so we complete it as early as possible. मैं कैसा भी दो दो यस सर। क्लासेस भी अगर हुआ तो भी कोशिश करके मैं जून सेकंड तक आपको कंप्लीट करके दे देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे कॉलेजेस है तो फिर मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो जून सेकंड तक कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास का मैसेज देखिए। आज भी आप 14 मिनट्स लेट ज्वाइन करें क्लास, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। सॉरी सर, नोटिफिकेशन नहीं आया था मेरे पास। जी मैसेज नहीं आया? नोटिफिकेशन ऊपर मैसेज में नहीं आया था। जरा आप देख लो, या मैं तो आपको कॉल करे तो कॉल कर सकते हैं ना आपको कभी भी। यस सर। लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट है तो मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम गर्ल्स को ही ज्यादा पढ़ाता हूँ। तो थोड़े बच्चियों को अपन कॉल नहीं करता हूँ, सेंसिटिव रहता हूँ इसलिए आपको कॉल कर सकते हैं बोलते हो, फिर मैं आपको कॉल भी करता हूँ क्लास से पहले। ओके सर, एक बार कर दिए। ठीक है, तो प्लीज बी इन टाइम इन योर क्लास, okay, and inform to your mother that third unit is also about to finish it for within 3 classes, then fourth and fifth units are there, that the sir is trying to finish in this month only, सर first फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट नहीं कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट का थोड़ा रिवीजन करता हूँ मैं फिर से। फर्स्ट यूनिट करना चाहिए ना अपने को आप भी। डायरेक्ट सेकंड से शुरू कर रहे थे। हाँ तो वही बोलो ना, फर्स्ट हम्म। यूनिट करता हूँ, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके फर्स्ट ओ- करता हूँ। और आपको ओके। ये जो अपन लेवल में पढ़ रहे हैं ना, ये फर्स्ट वेक्टर्स को, तो फर्स्ट यूनिट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती, इसीलिए तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, बेसिक बेसिक चीजें हैं ऑलरेडी, तकरीबन बेसिक अपन डॉट प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं, वही सब चीजें उसके अंदर करना है, तो वो जल्दी हो जाता, फर्स्ट यूनिट को ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अपन पहले तो ये कर लेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीट करेंगे, फिर फर्स्ट में जाएंगे, और कैसा भी ये फर्स्ट ओके सर। तक कंप्लीट करके दे देंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, फर्स्ट या ओके। सेकंड जून तक आपको कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक है, मैं एंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी दूसरा प्रॉब्लम अपन नहीं कर सकते, कल दो और प्रॉब्लम करके टोटल 3 प्रॉब्लम कर देता हूँ स्ट्रोक्स पे कंप्लीट। ठीक है ना, ये ओके। पीडीएफ को आप देख लो जी अच्छे से।